So whether we see ourselves from the three states of sleeping, waking, dreaming, or we see ourselves from our body, mind, and all of that is changing, but still we say, I am. So all our Shastras are talking about that I which is unchanging, and it is beyond the male-female binary. All the knowledge of the Vedas, in the Vedas it is said there were 25 Rishinis who had this knowledge, which is Shruti Jnana, which was just heard. There was no human agency. The knowledge of Vedas is a Paurushya. They never spoke about this. In the Upanishads, we have so many females who actually were the Upanishadic, who carried forward the Upanishadic thought, Maitri, and so many. So I think we are in a land called Bharata. And all these concepts of male, female, according to me, is again very Western. We never had this. So we have to rise above this binary of male, female. And whether it's a male or a female, all of us have physical body, which we call as Annamaya Kosh. All of us, all our physical body is working because of energy, and that we call as prana. We all have the dimension of mind, all of us, whether male or female. Or us mind, maybe if we see, there is the function of manas, the mind with the senses. There is the function of buddhi, the discretion, reasoning. There is the function of memory, smriti. And there is this ahankar. Anything that we associate with our name and form is ahankar. All of us, whether male or female, all of us have that. So where is the question? So is the strength in the physical body? Or is the source of strength in that which is not changing within us? So if we really anchor there, and that is what Indian knowledge systems actually all drive us onto, all Indian knowledge systems, and that is what we are doing in IIT. We have students from all disciplines, whether it is aerospace engineering or computer science or whatever, biotechnology. And they come and they take these. This is a mainstream course. We have the essence of the Upanishads, the Gnostic foundations of yoga, contemplative psychology, and we have students, BTech, MTech, and even research scholars from all disciplines who are taking this as a full breadth elective. And we have started this in IIT Mandi also now. I'm going and teaching in IIT Mandis also all of this. Because this is fundamental to all the disciplines. What is the point in knowing anything in the world without even knowing who am I? Am I this body? No. So I would like to give myself a pause here and remind ourselves, na ye sach, na wo sach, main hi sach. And what is that I? Who am I? And my journey with this I started with Gurudev Shri Shri Ravi Shankar Ji. I lived in the ashram for 18 years, in the Art of Living ashram. And wherever I am today is only because of his knowledge and making and building, I would say. That today we are able to mainstream this in institutions like IITs. Thank you so much. Namaste. Thanks a lot, ma'am. वेदों की ऋचाओं के अनुरूप प्रोफेसर ऋचा चोपड़ा ने भारतीय मनीषा का जो आज ज्ञान हमारे समक्ष प्रस्तुत किया. I think she has transcended the entire binary to a different level altogether. इसी तत्व को व्यवहारिक जगत में जो day in and day out somebody is fighting across this binary in a very splendid fashion, in a very creative fashion is our next speaker, next panelist, Madam Deepa Narayan Bharadwaj. I will request her. Yeah. Please, yeah. Madam Deepika Narayan Bharadwaj ji, and she's she's created such documentary films on, women issues and on the issue of men being harassed by the wrong cases. I think this is a very pertinent point now in modern times, and I'm sure Madam would like to will illumine us much more on this. Thank you so much, Surabhi. Good evening, everyone. आप सभी को मेरा नमस्कार. मेरा नाम दीपिका नारायण भारद्वाज है. बहुत सारी चर्चाएं हुई यहाँ पे और मैं सोच रही थी कि मेरा काम कहाँ पे फिट करता है, लेकिन सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि
आज बहुत सारे पैनल्स हैं, बहुत सारी डिस्कशंस हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम विमेंस इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, औरतों के साथ क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और किस तरह से उनको एम्पावर करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जेंडर कॉन्वर्जेसन से आदमियों का पूरा वो हो गया है कि उनके कोई इश्यूज़ नहीं हो सकते हैं, शायद तो हमारे को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो शायद मैं बड़ा थैंकफुल फील करती हूँ ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जो मुझे इनवाइट करते हैं और मेरे थ्रू इस कॉन्वर्जेसन को इनवाइट करते हैं। अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगी कि ऋचा मैम ने जो बोला कि बाइनरी में चीज़ें हमेशा देखना सही नहीं है, और मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात। फिज़िकल फॉर्म तो है ही है, मेंटल फॉर्म भी, एंड द वे वी आर ऑल मेड, आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। उसी तरह हर इंसान को दर्द होता है, उसके साथ कुछ गलत हो, उसी तरह से इंसान को पीड़ा होती है, उसके साथ गलत हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। जब अपने को पीड़ा होती है तो दर्द ज़रूर होता है, और कहीं ना कहीं उस पीड़ा से ये आवाज़ भी उठती है कि इस दर्द को मैं किस तरह से सुलझाऊं, या इस दर्द का सोल्यूशन क्या है। किसी महिला के साथ अगर गलत होता है तो शायद उनका भी पहला सवाल यही होता है कि मैं कैसे इस चीज़ को, इस जो मेरे खिलाफ हुआ है, जो मेरे साथ हुआ है, उसके लिए, अपनी न्याय के लिए आवाज़ उठाऊं। और मुझे लगता है किसी पुरुष के साथ भी अगर इस तरह का कुछ हो तो उनके भी मन में यही आता है कि मैं किस तरह से अपनी पीड़ा को कम करूं, या मेरे साथ मेरे लिए क्या है। आज से पता नहीं कितने साल पहले 1990s में मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हम्बल बैकग्राउंड से आती हूँ। मुझे लगता है कि हमारे लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस थे, वो मेरे मम्मा पापा ने फेस कर लिए और हमारे को एक बेहतर ज़िंदगी दी। जब मैं 3rd क्लास में थी तब मेरे पिताजी की गांव में पोस्टिंग हो गई। हम हरियाणा से आते हैं और राजौंद गांव में पापा की पोस्टिंग हो गई। तब मैं 3rd क्लास में थी। मेरे ब्रदर मुझसे 4 साल बड़े थे और वो शायद उस टाइम 7th 8th में थे। तो उनको एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया, और मेरे लिए डिसीजन हुआ कि मैं वहीं पे राजौंद के पास जो एक शहर है कैथल, वहाँ पे स्कूल में जाके पढ़ाई करूँगी। और मुझे लगता है 3rd क्लास की बच्ची के लिए डिसीजन शायद बेहतर ही था कि वो अपने माता पिता के पास रहे, क्योंकि बहुत ही छोटी थी। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात डाली गई कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं लड़की हूँ और मेरा भाई लड़का है। लेकिन ये सही नहीं था, रीज़न कुछ और था। लेकिन जब मैंने अपने पापा को ये बात बोली कि पापा, मुझे इन आंटी ने बोला है कि तुम्हारे को बोर्डिंग में इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि तुम लड़की हो, तो मेरे पापा को इतनी ज़्यादा बात चुभ गई कि उन्होंने उस समय पे, छोटी सी नौकरी करते थे वो हरियाणा गवर्नमेंट में, लोन लिया और मुझे 3 साल हरियाणा के एक वन ऑफ द बेस्ट बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ाया। तो मैं जो बात इस वाक़या से बोलना चाहती हूँ, ये बोलना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर संदर्भ में महिलाएं अपने आप को विक्टिम की तरह ही देखें। हम विक्टिम नहीं हैं, हम हर परिप्रेक्ष्य में विक्टिम नहीं हैं, और आदमियों के ऊपर भी उतनी ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या एक्सपेक्टेशंस या कहूँ उतना ही एक परिवार में चैलेंजेस दिए जाते हैं, शायद महिलाओं से कम, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चैलेंज नहीं होते। उनको भी अपने परिवारों के लिए कमाना पड़ता है, उनको भी अपने सपने मारने पड़ते हैं, उनको भी कई बार ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं या ऐसे करियर चूज़ करने पड़ते हैं जो शायद वो ना करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनको अपने परिवार को पालना है, उनके लिए सब कुछ करना है, तो उनको वो राह चलनी पड़ी जो वो चाहते नहीं थे। लेकिन बात बस इतनी सी है कि पुरुष ज़्यादातर अपनी इच्छाओं को, अपनी बातों को, अपने दर्द को अपने अंदर समा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो पेट्रियार्कल सोसाइटी का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ महिलाओं के ऊपर नहीं है, वो पुरुषों के ऊपर है। जो काम मैं आज के समय कर रही हूँ उसमें मुझे यूँ लगता है कि आदमियों ने, उनको जो एक सोशल प्रिविलेज मिली एज मेल्स ऑफ द सोसाइटी, उसको कहीं ना कहीं अब्यूज़ किया, और उसकी वजह से वुमेन बहुत ज़्यादा सफ़र करी। जो मैं काम करती हूँ वहाँ पे मैं देखती हूँ कि जो लीगल पावर बहुत सारी महिलाओं को मिली है और बहुत ही लेजिटिमेट मिली है, बिकॉज उनके साथ बहुत स्केल के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन, हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन होता है। बट कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो उस चीज़ का मिसयूज़ करती हैं, और उसके विक्टिम्स आज के समय पे पुरुष हैं।
मेरी डॉक्यूमेंट्रीज़ जो है फोकस करती हैं आदमियों के साथ जो गलत हो रहा है इस समय पे समाज में। मैं उन कहानियों को सामने लाने की कोशिश करती हूँ जहाँ पे एक आदमी के साथ लीगल इनजस्टिस तो हुआ ही, साथ में बहुत ही एक्सटेंड तक एक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ। शायद मेरा काम इंडिया जैसे सोसाइटी में बहुत ही प्रीएम्प्टिव है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम एक इक्वल समाज बनाना चाहते हैं, एक कंपेटिटिव समाज बनाना चाहते हैं, तो हमारे को ये नोशन कहीं ना कहीं अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा कि आदमी और पुरुष और महिला के बीच में महिला हमेशा बेचारी ही है और पुरुष हमेशा अत्याचारी ही है। ये इक्वेशंस बहुत सारी जगह पे बदल चुकी हैं, रिवर्स हो चुकी हैं, और कहीं ना कहीं हमारे को इस बात को करना शुरू करना पड़ेगा। इंडिया में जितने भी कानून हैं, खासकर जेंडर स्पेसिफिक प्रोविजंस, वो सब महिलाओं के लिए हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो मैरिटल क्रूअल्टी हो, चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, चाहे वो स्टॉकिंग हो, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज़ हो। एक पुरुष कंप्लेंट नहीं कर सकता है क्योंकि लॉज में सिर्फ महिलाओं को विक्टिम माना गया है। मैं हर रोज़ इस तरह के पुरुषों से और उनके परिवारों से बात करती हूँ जहाँ पे किसी पुरुष के ऊपर एसिड अटैक कर दिया गया, किसी पुरुष को हर रोज़ अपने घर में पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। कोई ऐसा पुरुष जिसको स्टॉकिंग का, अभी एक नेटफ्लिक्स पे फिल्म आई थी बेबी रेनडियर, शायद कुछ लोगों ने देखी होगी, बट मेरे पास एक्चुअली ऐसे विक्टिम्स हैं जो इंडिया में उस बेबी रेनडियर के एग्जैक्ट रेप्लिका हैं, जहाँ पे एक आदमी को इतनी बुरी तरह से स्टॉकिंग का शिकार होना पड़ा। लेकिन जब वो कानून के पास गए या पुलिस के पास गए तो पुलिस ने उनको ये बताया कि भैया आप चुप हो जाओ, आपकी तो कंप्लेंट पहली बात हम दर्ज कर नहीं पाएंगे, कल को अगर वो आके हमारे को बोलेगी कि आपने उसके साथ गलत किया तो उसकी कंप्लेंट हम लेंगे भी और आपको गिरफ्तार भी करेंगे। तो मेरे पास हर रोज़ इस तरह के विक्टिम्स आते हैं जहाँ पे जेंडर की जो हम डायनामिक्स हैं वो बिल्कुल उल्टी होते हुए देखते हैं। कभी कभार बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है, कभी कभार बहुत रोना भी आता है, क्योंकि जब इनका दुख देखती हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि इस चीज़ को मैं किसी तरह से एड्रेस कर पाऊँ। तो मेरा जो काम है वो शायद इन बाइनरीज़ के ऊपर बढ़ के और एक इंसान को एक इंसान की तरह देखने का है और न्याय देने का है, चाहे वो आदमी हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हों, चाहे कोई भी हो। तो मेरी लड़ाई जो है वो न्याय की है। और वंस अगेन थैंक यू सो मच। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक जब हम फेमिनिज़म की बात करते हैं और इंटेग्रल फेमिनिज़म, आपने जो एक शब्द का इस्तेमाल किया मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है फेमिनिज़म शुड मीन इक्वालिटी, and equality has to come from a space where everybody is taken care of. So thank you so much. Thanks a lot, ma'am. I think she has summed up the spirit of the panel too, which was all about bolstering integral feminism, furthering gender equity in the spirit of complementarity and not competition. So I think सुषमा जी के सानिध्य में, उनकी चेतना के सानिध्य में आज यह जो ज्ञान यज्ञ रहा, काफ़ी नूतन बातें भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई। और अब थोड़ा सा जलपान का एक विश्राम हम लेना चाहते हैं। और दो विदुषियाँ, दो वेरी प्रोमिनेंट पीपल, दे विल, आई वुड से, पोषण की बात है, वी हैव डॉक्टर अनन्या अवस्थी, वुड बी फेलिसिटेटेड, शी इज़ एन एक्टिविस्ट फ्रॉम द पोषण परस्पेक्टिव। तो पोषण भी बहुत आवश्यक है। एंड आई रिक्वेस्ट प्रियशा सलूजा जी, हु रन्स द सिनेमन किचन मूवमेंट, की ये जो पोषण है आईआईसी का, उसको भी वो इवैल्यूएट करें अपने उस पर्सपेक्टिव से। सो सभी के लिए डॉक्टर सुधी प्लीज इनवाइट फॉर्मली। Yeah, also welcoming Dr. Tripta Thakur, ma'am, Director General from National Power Training Institute. Thank you for coming in, ma'am. And we have Chandni Agarwal ji from Little Tax Luxury, and all the distinguished school academicians. And so we'll now just have a short break. And also we would like to welcome M. Nageshwara Rao Garusa, who headed the Central Bureau of Investigation for a short while. We call him as the mascot of Civilizational Bureau of India. He's quite a fervent advocate of that. So we welcome sir. So let's all join in for a small refreshment, and then we'll come back for the felicitations in Sushma ji's name, remembering her spirit. Solemn occasion, but yes, that's what we are here for. टू रिमेंबर हर। एंड वो हमारे यहाँ कहते हैं कि जो इष्ट होता है उसकी भी क्वालिटीज़ हमारे अंदर, इट जस्ट कम्स ओवर देयर। सो लेट्स मूव ऑन। थैंक यू।